Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss how to simplify the Boolean expressions using Boolean algebraic laws, right? To simplify the Boolean expressions or to verify these Boolean expressions, there are two methods. First one is using truth table and second one is using Boolean laws. That truth table method is very easy and no doubt using Boolean laws this is also very easy, but इसके लिए आपको जो Boolean laws हैं वो भी अच्छे से आने चाहिए. So in this video, first we will discuss the Boolean laws very quickly. Then we will practice some 10 or 11 questions to simplify the Boolean expressions using Boolean laws. So without wasting our time, let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So now, let's start our today's video. So now let's first quickly revise the Boolean laws. ये जितने भी Boolean laws हैं in detail we have already discussed. ठीक है, properties of 0 and 1, that is 0 plus x is x, 0 into x is 0, 1 plus x is 1, 1 into x is x, इस तरीके से. Idempotence law, x plus x equals to x, x into x equals to x. ये ध्यान से देखना बच्चों, x plus x equals to x. That means अगर मेरे कोई भी Boolean variable 2 times आ रहा है in addition, तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं. इन्वॉल्यूशन लो, x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट x होता है. कॉम्प्लीमेंट्री लो, x plus x complement is 1 and x into x complement is 0. These are your commutative and associative law. Distributive law, again very important. X into y plus z equals to x into y plus x into z, or x plus y into z equals to x plus y into x plus z. This is your absorption law and this is your third distributive law. X plus x complement into y equals to x plus y. ठीक है, I hope ये सारे Boolean laws आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं. Now see the question. Solve the Boolean expression algebraically. ठीक है, ये सब आप truth table की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हमें algebraically सॉल्व करना है तो ये जो जितने सारे Boolean laws हैं that will be used. अब इनको सॉल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना होता है. आप इट्स योर चॉइस, यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. जनरली बेटा जो टर्म जितनी बड़ी दिख रही होगी वो उतनी इजीली हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ सी दिस क्वेश्चन, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड, राइट. अब स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर. अब इसमें ध्यान से देखना, x इंटू वाई प्लस y into z plus y complement into z. Now we are having two methods. Two methods नहीं आप कह सकते कि फर्स्ट इज कि आपके माइंड में क्या आ रहा हो कि हम इसमें से अगर y कॉमन ले लें तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा x plus z. ठीक है, बट अवॉइड यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेथड कि आप ऐसे कॉमन ले रहे हो जहां पर आपकी जो अंदर वाली टर्म है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. ठीक है, तो जब भी आप किसी दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लोगे तो मेक श्योर कि अंदर या तो 1 प्लस समथिंग रह जाए या फिर किसी नंबर और उसका कॉम्प्लीमेंट हो जिसको हम सॉल्व इजीली कर सके, जो मेरे सिंप्लीफाइड टर्म हो जाए. ठीक है, अगर मैं इसमें से फर्स्ट 2 टर्म्स में से इफ आई विल टेक कॉमन y तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस z, वो ऑब्वियसली आपका सॉल्व फर्दर नहीं होगा, राइट. सो विल अवॉइड यूजिंग मेथड्स. अब देखो इसमें से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या आ रहा है कि फ्रॉम लास्ट दीज टू टर्म्स कैन आई टेक कॉमन z, राइट. दिस x इंटू वाई विल बी एज इट इज प्लस यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे बेटा z, और अंदर मेरे पास रह जाएगा y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, राइट. अब इक्वल्स टू x इंटू वाई एज इट इज प्लस z. अब y plus y complement कितना होता है 1. Here in your exam you have to write कि you are using complementary law where y plus y complement is 1, right.
अब यहाँ पर आ गया x इंटू वाई प्लस जेड, z इंटू वन इज z, ठीक है। अगर आप जनरल हम बात करें तो 1 इंटू एक्स आप लोग क्या करते हो x, तो z इंटू वन विल बी z। अब ये मेरे पास बस यही हमारा RHS है, x इंटू वाई प्लस z, राइट, दिस इज आवर RHS। चेक करो, x इंटू वाई प्लस z, हेंस प्रूफ, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू x। अब इसमें देखो मुझे सिर्फ एक चीज ध्यान आ रही है, क्या इस x को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हियर, x इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, राइट। और यू कैन से कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है x इंटू वाई प्लस जेड, बट वहां पर हमारी तीनों वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, तो यू कैन सिंपली कि भी हमने इस x को मल्टीप्लाई करा है पहले x के साथ फिर y के साथ, राइट। और x इंटू एक्स इज x प्लस एक्स वाई, राइट। हियर यू हैव टू राइट द विच प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग, x इंटू एक्स इज x। अब x इक्वल्स टू x प्लस एक्स वाई, इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर मेरे पास रह जाएगा 1 प्लस वाई, एंड 1 प्लस वाई इज योर 1, x इंटू वन इज योर x, this is your right hand side, right? Now see this next question, x into y complement plus x complement plus xy, और right hand side में given है x complement plus xy plus y complement। अब इसको हम left hand side से ही solve करते हैं। अब x into y complement, यहाँ पर ये complement वाली हमारी कौन सी थ्योरम है, De Morgan's theorem, right? So we will use De Morgan's theorem here, x into y whole complement, this is equals to your x complement plus y complement plus x complement plus xy, right? अब इसको ध्यान से देखो, x complement plus x complement equals to x complement plus y complement plus xy, y complement plus xy। अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा, अगर आप इसका आंसर देखोगे तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप इसको यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हो बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी लॉ, x कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है। इस y कॉम्प्लीमेंट को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू योर RHS, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं हम स्टार्ट। अब इसमें देखो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन है x प्लस वाई इंटू जेड, दिस इज ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको मैं और क्या सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ठीक है। या तो इंटू वन करके हम कुछ कर सकते हैं, या फिर जो मुझे राइट हैंड साइड पर गिवन है टर्म x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फॉर दिस आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड नाउ, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करोगे, जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो, इस x को इस पूरी टर्म के साथ, दैट मीन्स x प्लस जेड प्लस y, और इस y को हम दोबारा से किससे करेंगे, x प्लस जेड के साथ, ठीक है। मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है यहाँ फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लीकेशन गलत कर देते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हो, नहीं, ठीक है। इस x को x प्लस जेड के साथ करोगे प्लस y, then again you have to write x plus z. Now multiply this, x into x plus x into z plus y into x plus y into z. Now x into x is your x plus xz plus yx plus yz, ठीक है। अगेन वही बात बेटा, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लेके हमारा कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है, तो वो आगे टर्म आपकी फर्दर सॉल्व नहीं होगी। लेट्स टेक कॉमन x फ्रॉम दीज टू टर्म्स, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड, तो 1 प्लस जेड विल बी 1 एंड 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड, राइट। नाउ सी दीज टू टर्म्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस वाई जेड,
अब 1 प्लस वाई विल बी योर 1 इंटू एक्स एक्स। तो अब यहाँ पर मेरा क्या रह गया एक्स प्लस वाई जेड विच इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा लो है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लो। राइट हैंड साइड लेकर चलोगे, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व कि किस मीन्स क्या कॉमन लें, किसकी जगह क्या रिप्लेस करें, तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड तक वहां तक पहुंच सकते हैं। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, x into y plus x complement into z plus y into z equals to x into y plus x complement into z। ठीक है, अब देखो अगर मैं राइट हैंड साइड वाली टर्म की बात करूं तो यहाँ से तो मेरा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, x into y ये भी नहीं सॉल्व होगा, x complement into z ये भी नहीं सॉल्व होगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूं लेफ्ट हैंड साइड में x into y प्लस x complement into z प्लस y into z। ठीक है, एक ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चों कि लेट सपोज अगर मैं इन दो टर्म्स में से z कॉमन ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा x complement प्लस y, उसका बेनिफिट नहीं है, वो नहीं सॉल्व होगा। इफ आई विल टेक कॉमन y फ्रॉम दीज टू टर्म्स, वो भी नहीं बेनिफिट रहेगा क्योंकि अंदर क्या रह जाएगा x प्लस z। ठीक है, तो वो भी हमारा बेनिफिशियल नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, इसको हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे, x इंटू वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है, इस y इंटू जेड को कैन आई राइट x इंटू वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड प्लस 1 इंटू वाई इंटू जेड, बिल्कुल लिख सकते हैं। y इंटू जेड को 1 इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे बच्चों x इंटू वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड प्लस, अब इस 1 को देखो कुछ क्वेश्चंस में जो हम 1 लिखते हैं या तो वो रिप्लेस होगा वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, या हम उसको रिप्लेस करेंगे 1 प्लस समथिंग। ये दो चीजें 1 में आती हैं, या तो नंबर वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट प्लस करोगे तो वो 1 के इक्वल होगा, या फिर 1 प्लस करके हम कुछ करेंगे तो उसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, और जनरली जो वेरिएबल आप लोगे दैट विल बी द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म मींस अब y into z है, वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स इन द क्वेश्चन, मिसिंग वेरिएबल फॉर दिस टर्म इज x। तो दैट मीन्स या तो मैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स लिख करके सॉल्व करूं या फिर x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट लिख करके सॉल्व करूं। ठीक है, लेट सपोज अब हमें नहीं पता कि कौन सा मेथड यूज होगा। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, तो लेट सपोज मैंने लिखा 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, लेट सपोज। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे x इंटू वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई है यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ से z नहीं कॉमन आ रहा है, यहाँ से अगर मैं y को मैं ले लूं अंदर x प्लस जेड आएगा, नहीं सिंप्लीफाई हो रहा। लेट सपोज अब इसको हम लिख देते हैं x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या वो सॉल्व हो रहा है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि x कॉम्प्लीमेंट z यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्वेश्चन में भी हो सकता है सॉल्व हो जाए, राइट। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, लेट मी राइट इट थोड़ा नीट एंड क्लीन। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, x इंटू वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड प्लस दिस वन विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू जेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x इंटू वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड प्लस एक्स वाई जेड, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, नाउ सी दीज टू टर्म्स, किस में से हमारा नंबर कॉमन आ रहा है, एक्स वाई एक्स वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड हो रहा है एक तरीके से सॉल्व। तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों फर्स्ट और थर्ड टर्म में से, एक्स वाई कॉमन आ गया तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस यहाँ पर रह गया मेरे पास x। अब ये टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड, राइट। नाउ एक्स वाई 1 प्लस एक्स विल बी 1। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड,
अंदर क्या रह गया मेरे पास 1 प्लस वाई, राइट, x इंटू वाई प्लस x कॉम्प्लीमेंट z एंड 1 प्लस वाई इज 1 और x कॉम्प्लीमेंट z इंटू 1 इज x कॉम्प्लीमेंट इंटू z. नाउ सी योर राइट हैंड साइड x इंटू वाई प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू z विच इज इक्वल्स टू माई राइट हैंड साइड, राइट. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, आई एम श्योर आपने इसमें जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा. नाउ लेट्स प्रैक्टिस अनदर क्वेश्चन. x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y इक्वल्स टू x प्लस y. ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये मेरा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. माय थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू y इक्वल्स टू x प्लस y. x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू y इक्वल्स टू x प्लस y, राइट. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. कौन सी साइड लेकर चले, x प्लस y तो नहीं सॉल्व होगा. So we will start with our left hand side, that is x plus x complement into y, right? x plus x complement into y. अब ये भी नहीं सॉल्व हो रहा है, राइट. इसको अब इंटू 1 करके ही सॉल्व करना पड़ेगा. दैट मीन्स x इंटू 1 प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू y. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इस 1 को या तो रिप्लेस करोगे 1 प्लस समथिंग से, और यू कैन से नंबर प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो भी 1 के इक्वल होता है. ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, इस 1 की जगह एक तो यूज होगा मिसिंग टर्म को लेकर करेंगे, या तो 1 प्लस वाई लिख सकते हैं या फिर y प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया x इंटू 1 को 1 प्लस वाई प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस एक्स वाई प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई. नाउ अब इसमें से x मत कॉमन लेना, वो नहीं तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी. इसमें से चेक करो, मेरे पास y कॉमन आ रहा है, प्लस अंदर कॉमन लेकर बेनिफिट पे मिल रहा है x प्लस x कॉम्प्लीमेंट रह जाएगा, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा. x प्लस फ्रॉम हियर वी कैन टेक कॉमन y, तो अंदर रह जाएगा इट विल बी x प्लस x कॉम्प्लीमेंट x plus y, x plus x complement is 1 and 1 into y is 1. So your final is x plus y, which is equivalent to your right hand side. Now see this, ये तो बहुत बड़ी टर्म आ गई, but let me tell you, जितनी बड़ी टर्म होगी वो उतनी easily ही solve होगी. सिर्फ दिखने में complicated होता नहीं है. जो ये 3 variables वाले होते हैं, these are very easy. ठीक है, अब देखो क्या करना है, x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट. इनको सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है बच्चों वो क्या रहता है, आपने कोई 2 टर्म्स देखनी है जिसमें मेरे 2 वेरिएबल्स कॉमन आ जाए. ठीक है, लाइक लेट्स सपोज इफ आई विल टॉक अबाउट दीज फर्स्ट 2 टर्म्स. इसमें से मेरे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और z कॉम्प्लीमेंट आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से मीन्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट एंड z कॉम्प्लीमेंट. तो अंदर मेरे पास रह गया y कॉम्प्लीमेंट प्लस y, और कॉमन उन्हीं टर्म्स में से लेना बच्चों जो अंदर मेरे जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो सिंप्लीफाई हो जाए. प्लस अब इन दोनों में से देखो एक बारी क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और z कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, राइट. x इंटू z कॉम्प्लीमेंट, तो अंदर मेरे पास रह गया y कॉम्प्लीमेंट प्लस y. नाउ इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आएगा बच्चों y कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, y कॉम्प्लीमेंट प्लस y इज 1 एंड हियर आल्सो x z कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y इज 1. अब इसको लिखेंगे x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट प्लस x z कॉम्प्लीमेंट. राइट हैंड साइड में देखो सिर्फ मुझे क्या चाहिए, ओनली z कॉम्प्लीमेंट. नाउ सी दीज 2 टर्म्स, z कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो अंदर रह गया x कॉम्प्लीमेंट प्लस x, और x कॉम्प्लीमेंट प्लस x इज योर 1 और z कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 इज योर z कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू योर राइट हैंड साइड. है ना, काफी सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इंटू a प्लस b. वेरी सिंपल, जस्ट ये 2 ब्रैकेट्स गिवन हो मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, नाउ अगेन वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इंटू a प्लस b, राइट.
अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट विद इन ब्रैकेट्स यू हैव टू राइट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड हियर यू हैव टू राइट ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ठीक है, अब देखो जरा क्या सिंप्लीफाई हो रहा है बच्चों इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी ऑल्सो 0, राइट। नाउ सी योर राइट हैंड साइड टर्म जो आपको गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ये मेरा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं लिख सकती हूँ ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जहां पर हमने किसको चेंज किया, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट एक्स वाई प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, इसको मुझे इक्वल करना है वाई के। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। इफ आई विल टेक y कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, नो बेनिफिट, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस जेड, वो ऑब्वियसली आपका सॉल्व नहीं होगा। इन टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, y कॉमन आ रहा है और अंदर क्या रह जाएगा z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्वियसली मेरा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, राइट। एक्स वाई प्लस फ्रॉम दीज टू टर्म्स आई एम टेकिंग कॉमन एज y, अंदर रह जाएगा z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स वाई प्लस वाई z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इज योर 1, राइट। हियर यू हैव टू राइट, वी आर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री रो, z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इज योर 1, एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई इज योर 1, राइट। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों दोनों में से, y, तो अंदर क्या रह गया मेरे पास x प्लस 1। बच्चों अगर x प्लस 1 सॉरी 1 प्लस x 1 है तो x प्लस 1 भी 1 होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो इस तरीके से करते हो, x प्लस 1 को मैं 1 प्लस x लिख सकती हूँ। ठीक है, और 1 प्लस x मेरा 1 होता है और y इंटू 1 मेरा क्या होता है, y होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू योर राइट हैंड साइड। डन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी मेहनत करके आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन एंड द नेक्स्ट वन, राइट। अब ध्यान से देखो, मेरे को अगेन 3 वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, जब भी 3 वेरिएबल्स में क्वेश्चन गिवन हो, व्हाट यू हैव टू चेक कि कौन से 2 टर्म्स में से मेरे पास 2 वेरिएबल कॉमन आ जाए और अंदर वाली टर्म मेरी सिंप्लीफाई हो जाए, राइट। सो x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट, इन 2 टर्म्स को चेक करो, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग x कॉम्प्लीमेंट इंटू y कॉम्प्लीमेंट और अंदर मेरे पास रह गया z कॉम्प्लीमेंट प्लस z। नाउ सी नेक्स्ट 2 टर्म्स, फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग कॉमन एज x कॉम्प्लीमेंट इंटू y और अंदर रह गया z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस लास्ट 2 टर्म्स में से मेरे पास कॉमन आ रहा है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और अंदर रह गया बच्चों z कॉम्प्लीमेंट प्लस z। ठीक है, अब z कॉम्प्लीमेंट प्लस z, दिस आई एम गेटिंग इन ऑल द 3 टर्म्स विच इज इक्विवेलेंट टू 1। z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट कितना होता है बच्चों, 1, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट इंटू y प्लस x इंटू y कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब आंसर देखो अपना जो राइट हैंड साइड है, दैट इज x कॉम्प्लीमेंट प्लस x इंटू y कॉम्प्लीमेंट। नाउ सी कौन सी टर्म्स में से मेरे पास कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है बच्चों। इफ आई विल टॉक अबाउट दीज 2 टर्म्स, तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग x कॉम्प्लीमेंट एज कॉमन और अंदर मेरे पास रह गया y कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब y कॉम्प्लीमेंट प्लस y विल बी योर 1, तो यहाँ पर रह गया x कॉम्प्लीमेंट प्लस x इंटू y कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू योर राइट हैंड साइड, राइट। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, दिस वन। अब इसकी अगर स्टेटमेंट देखो आप लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज वेरी मच सिमिलर।
एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट सारी टर्म सिमिलर है, बट राइट हैंड साइड डिफरेंट है। राइट हैंड साइड में मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये प्रूव करना है इंस्टेड ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे, बिल्कुल फटाफट से लिख लेते हैं इसको। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स हमें क्या कॉमन मिला था, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोसेस सेम है बेटा स्टार्टिंग का, जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया बच्चों एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई, यहाँ पर आ गया z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एंड फ्रॉम हियर इट्स x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, अंदर है गया z कॉम्प्लीमेंट प्लस z, और z प्लस z कॉम्प्लीमेंट विल बी और 1, तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमने x कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया है, y कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये वही सारे स्टेप्स हैं बेटा जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसमें तो हमें यही सॉल्व करना था इस वाले क्वेश्चन में, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है। अब उस बट इसमें मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, या इस x को हम x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस टर्म हियर x कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नाउ सी दिस x कॉम्प्लीमेंट प्लस x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, x होता है इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि क्या यूज करना है, अब मेरे माइंड में ना थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ रहा है बच्चों, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं, बूलियन वेरिएबल साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट इनटू वाई, ये मेरे पास क्या होता है एक्स प्लस वाई, ये होता है मेरे पास थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया इनटू वाई कॉम्प्लीमेंट। अब इसको जरा आप कंपेयर करो बच्चों, ये एक्स हो गया मेरे पास, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वाई कॉम्प्लीमेंट, मींस इस फॉर्मूले से मुझे ये चीज बनानी है। अब यहाँ पर जो x है वो मेरा यहाँ पर क्या है, x कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हो बात को, तभी मेरा यहाँ पर वो फर्दर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में बच्चों लिखना चाहूं तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इनटू y कॉम्प्लीमेंट। दिस यू हैव टू कंपेयर इट विद योर थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, बूलियन वेरिएबल है, ये मेरा बूलियन वेरिएबल जो x है वो यहाँ पर क्या है मेरे पास, x कॉम्प्लीमेंट, राइट। x कॉम्प्लीमेंट जो है मेरा वो यहाँ पर क्या है, x प्लस उस जो फर्स्ट टर्म है उसका कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इनटू y, और y मेरा यहाँ पर क्या है बच्चों, y कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अब मुझे क्या लिखना है, x मेरा क्या था, x कॉम्प्लीमेंट था, प्लस y मेरा क्या था, y कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, राइट। सो विद दिस क्वेश्चन आई होप आपके जितने भी कंसेप्ट थे दैट आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, राइट। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए, ठीक। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।